हेलो जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਦਾਬ ਨਮਸਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸਰਵ ਅਕਾਲ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਰਵ ਅਕਾਲ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਪੌਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਪੌਲ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕਈ ਗੁਰੂਜਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਪੌਲ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਅਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਠੁਮਰੀ ਗੀਤ ਗਜ਼ਲ, ਜੈਪੁਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀਬੀ ਪਾਟੇਕਰ ਖਿਆਲ ਗਾਇਕੀ, ਬਨਾਰਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਪੰਡਿਤ ਮਹਾਦੇਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਬਨਾਰਸ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਵਿਦੁਸ਼ੀ ਗਿਰਜਾ ਦੇਵੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਂ ਸੈਮੀ ਕਲਾਸੀਕਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਤਵਿਕ ਸਨਿਆਲ ਤੋਂ ਧਰੁਪਦ ਧਮਾਰ, ਆਗਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਗੁਨਪਿਆ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਗਾਇਕੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਅਮੁੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ। ਆਪਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਵਤਾਪੂਰਨ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਆਪ ਇੱਕ ਸੁਘੜ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਨੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਪੌਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਚ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ। ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਪੌਲ ਜੀ ਦਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਤਾਰੂਫ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਉਸਦਾ ਫਨ, ਉਸਦਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨੀਲਮ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਨੀਲਮ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਾਰੂਫ ਹੈ। सो वी आर रियली ग्रेटफुल प्रोफेसर नीलम जी कि आपने हमें आज समय दिया। आज हमारा दूसरा दिन है इस वेबिनार सीरीज का जिसका नाम है संगीत चिंतन, जिसमें हम विमेन स्कॉलर्स के साथ जो हैं किसी ना किसी विषय पे हर रोज वार्तालाप भी कर रहे हैं और उनके विचार जान रहे हैं। और असी बड़े ही वडभागे हाँ कि अज साडे नाल एक होर विशेष सन्मानित शख्सियत पंडित सुशील कुमार जैन जी जुड़े हुए ने जिन्हां ने साडी बेनती प्रवान कीती ते अपना समा सानू दिता। जैन साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी इस मंच दे उत्ते। और पिछले दिनां दे विच जैन साहब दे शागिर्द लगातार सरबकाल लाइव तो अपनी पेशकारी देंदे रहे। जैन साहब भी जुड़ते रहे। इन्हां दे बड़े मुल्यवान विचार संगीत बारे, साधना बारे, कला बारे, चिंतन बारे असी सारे सुनते रहे। असी किन्ने खुशकिस्मत हां कि पंजाब दे विच इस तरह दे जिहड़े विद्वान ने उन्हां दी छत्र छाया दे विच असी बैठे हां ते कुछ ना कुछ संगीत बारे सोचण दी, करन दी जिहड़ी हिम्मत है वो करते रहने। जिस तरह नीलम जी भी लगातार खास तौर पे लॉकडाउन पीरियड जिस तरह उन्होंने लगातार वेबिनार्स का आयोजन किया है वो अपने आप विच बड़ी रिमार्केबल गल है। सो थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज। और अज हुण असी अपने विषय वाल चलांगे। साडा अज दा विषय जिहड़ा है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है।
ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਪਮ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ, ਬੜੇ ਸੁਗੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮੇਟੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਰਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। As we all know, raga is a unique concept of Indian music. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗੀਤ ਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਕੋਈ ਧੁਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਰੀਲਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ। ਰਾਗ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਿਊਨਸ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਕਿੰਨੇ ਆਲਾਪ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਨਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਰ ਸੰਗਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਦੇ ਸਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਚਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਰਾਗ ਦਾ ਰੂਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਖਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। And I think on this point today we are going to talk. On this point today we are going to talk because ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਰਾਗਾਸ ਇਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਗ। ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅੰਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ 2 ਹੱਥ, 2 ਬਾਹਾਂ, 2 ਅੱਖਾਂ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਮੁਹਾਂਦਰਾ, ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸਵਰ ਉਹੀ 12 ਸਵਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਗ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਵੀ ਰਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਓ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਗ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸੂਖਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਔਨ ਥੀਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਗਾ ਕੇ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਨਾਓ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮਪਾਲ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਗ, ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਰਾਗਾਸ ਇਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮਪਾਲ ਜੀ। नमस्कार, सत श्री अकाल। सर्वप्रथम मैं सर्व अकाल म्यूजिक सोसाइटी कैलगरी द्वारा आयोजित 7 दिवसीय वेबिनार के द्वितीय दिवस की व्याख्यान माला संगीत चिंतन में मुझे आमंत्रित करने के लिए मेरी प्रिय बहन प्रोफेसर निवेदिता सिंह जी और सर्व अकाल म्यूजिक सोसाइटी के आदरणीय हमारे श्री हरजीत सिंह जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस व्याख्यान माला में अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही हमारे स्क्रीन पर हमारे आदरणीय पंडित सुशील जैन जी भी उपस्थित हैं, जिनका आज हमें आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है, और हमारी विद्यार्थी रमनदीप जो इस आयोजन में अपनी भागीदारी कर रही हैं, आप दोनों को नमन है। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस वेबिनार में जुड़े हुए मेरे गुरुजन, मेरे आदरणीय जन, मेरे मित्र, शिक्षक मित्र और विद्यार्थी मित्र, सभी को मैं प्रणाम करते हुए आज अपने इस व्याख्यान माला का आगाज करने का आप सभी से अनुमति चाहती हूँ। भारत एक, अगर सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा ही समृद्ध देश है, ऐसा हम सभी जानते हैं। और संगीत भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग के रूप में सदैव से विद्यमान रहा है। भारत में अनेक प्रकार का संगीत निरंतर प्रवर्तमान रहा है। आज हम भारतीय संगीत में रागों में समानता,
और उसमें भेद वगैरह जितने भी हमारे आसपास की चीजें हो सकती हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। भारत में संगीत के अनेकों रूप आज अस्तित्व में हैं। जैसे इसमें जो राग संगीत है, जिसे हम शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक आदि नामों से भी जानते हैं, यह राग संगीत की परंपरा प्राचीन काल से भिन्न भिन्न रूपों में परिवर्तित होती हुई आज हमारे समक्ष विद्यमान है, और जिसे हम भली भांति सभी संगीत से जुड़े हुए विद्यार्थीगण या शिक्षकगण या कलाकार बंधु सभी जानते हैं। और ऐसा भी हम सभी जानते हैं कि राग के माध्यम से, जो एक राग शब्द है, शब्द रूप में राग के माध्यम से हम उस राग में निहित उसके नादात्मक भाव रूप को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम भाषा द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार से स्वरों के माध्यम से रागों की कल्पना नादात्मक रूप में हम व्यक्त करते हैं। सभी कलाकार, शिक्षक हैं, विद्यार्थी, सबका यही एक उद्देश्य रहता है। और आजकल का जो शास्त्रीय संगीत वास्तव में राग संगीत, रागदारी संगीत, पक्का संगीत, यही सब कुछ है। क्योंकि शास्त्रीय संगीत में हम राग ही गाते बजाते हैं, राग ही सीखते सिखाते हैं और राग ही सुनते सुनाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यह राग है क्या? यहाँ मैं विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से बात करना चाहती हूँ, बाकी हमारे जो सुधीजन है, गुणीजन है, आदरणीय जन, उन सबको तो ये सारी बातें ज्ञात ही हैं। तो विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से कि ये राग क्या है, इस संदर्भ में अगर हम ग्रंथकारों द्वारा कही गई बहुत सारी व्याख्या पाते हैं, लेकिन अगर उनको जानेंगे, ध्यान देंगे, तो हमें ये ज्ञात होगा कि रंजन या रंजकता का राग के साथ गहरा संबंध है। और इसीलिए विद्वानों ने कहा भी है, रंजयते इति रागः। अब प्रश्न यहाँ आगे हमारे सामने उपस्थित हुआ कि क्या जो भी कुछ रंजक है वो राग है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जी। राग में अनुशासन अवश्य होना चाहिए, और जिसकी परवर्ती ग्रंथकारों ने इस प्रकार से व्याख्या की, योऽयं ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जन चित्तानां स राग कथितो बुधैः। यानी ऐसी स्वर रचना जो वर्ण युक्त हो, रंजक हो, राग कहलाती है। अब वर्ण क्या है? वर्ण यानी गान क्रिया, मोटे तौर में हम इसको ऐसा समझ सकते हैं। किंतु यदि इसके सूक्ष्म रूप की हम बात करना चाहें तो मूवमेंट्स ऑफ नोट्स ही वर्ण है। यानी जब हम स्वर को गाते समय मूवमेंट देते हैं तो वह गतिमान होता है, क्रियाशील होता है, और शास्त्रों में इसी क्रियाशीलता को वर्ण कहा गया है। राग में स्वर, वर्ण, इन सब का कितनी अहम भूमिका है, इसको हम जब सीखते हैं संगीत या उसका अभ्यास करते हैं या हम कहीं उसका प्रदर्शन करते हैं, तो हमें उन सभी पक्षों पर ध्यान देते रहना पड़ता है। तो जो स्वरों की क्रियाशीलता में अनुशासन द्वारा ही हम अनेकों रागों के पृथक पृथक स्वरूपों का दर्शन कर पाते हैं। स्वरों की क्रियाशीलता एकल ना होकर स्वर संगतियों के रूप में भी की जाती है। इन संगतियों का रागों में विशेष महत्व रहता है, क्योंकि इन्हीं स्वर संगतियों को नियमबद्ध करके नाद के रूप में जो आकृतियां बनाई जाती हैं, वह ही राग कहलाती हैं। तभी जो विद्वानों द्वारा कही गई परिभाषा है, योऽयं ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जन चित्तानां स राग कथितो बुधैः, यह परिभाषा सिद्ध होती है। रागों में विशिष्ट स्वर या स्वर संगतियों पर विशेष बल या जोर देकर उसमें निहित भाव स्पष्ट किया जाता है। जैसे
भाषा में किन्हीं शब्दों पर जोर देकर हम अपनी बात को पावरफुल बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से रागों में भी अलग अलग स्वर संगतियों पर हम विशेष बल देते हुए उनको एक दूसरे से भिन्न भी करते हैं और अपनी राग संबंधी जो हमारा एक संप्रेषण करने का जो भाव रहता है उसको हम पुष्ट भी करते हैं। राग संगीत में भिन्न भिन्न प्रकार के राग आज हम पाते हैं। प्रत्येक राग एक दूसरे से भिन्न भी है और कहीं ना कहीं उसका उन रागों के साथ साम्य भी पाया जाता है। राग संगीत की विशिष्टता यानी जैसा कि प्रिय बहन निवेदिता जी ने भी शुरुआत में बताया था कि राग संगीत की विशिष्टता स्वर लगाव ही है, जो क्रियात्मक रूप से योग्य गुरु के सानिध्य में सीखा समझा जाता है। तत्पश्चात पूरी सूझबूझ के साथ उसका अभ्यास करके उसे आत्मसात किया जाता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है जिसके लिए उचित समय, ध्यान, चिंतन मनन और अभ्यास की सदैव आवश्यकता रहती है। आज हम ऐसे ही रागों और रागों में पाई जाने वाली विशिष्ट स्वर संगतियों में स्वर लगाव की बारीकी पर ध्यान देना चाहेंगे, जैसा कि हमारा आज का व्याख्यान माला का विषय भी है। तो इस कड़ी में मैं आगे बढ़ने के लिए आप सबकी आज्ञा चाहती हूँ कि कुछ ऐसे रागों को मैं लेना चाहूंगी जो समान स्वर के होते हुए भी उनमें विभिन्नता भी है और साम्यता भी है। तो ऐसे रागों में सबसे पहले मैं आपके सामने जो मारवा थाट से जन्य 3 राग हैं और बड़े ही प्रिय राग हैं, पूरिया, मारवा, सोहनी, तो इनके बारे में बात करना चाहूंगी। ये तीनों ही राग हमारे मारवा थाट जन्य है, यानी उनमें ऋषभ कोमल और तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। और जब इनको राग के रूप में हम सीखते सिखाते हैं तो उसमें पंचम वर्जित कर दिया जाता है। तो ये एक साम्यता है इन तीनों रागों की। लेकिन इतना अद्भुत काम हमारे पुराने गुणी जनों ने एक ही स्वरों में 3 राग ऐसे खड़े किए हैं स्वर लगाव के जरिए से कि तीनों ही अपने में अलग अलग खूबसूरत भी हैं। तीनों आपस में समझ भी आता है कि एक ही परिवार के हैं लेकिन फिर भी अलग अलग हैं। जैसे हम लोग अपने परिवारों में भाई बहन एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और एक दूसरे से अलग अलग भी होते हैं। तो सबकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी विद्वानों ने किस तरीके से निश्चित की और वो भी स्वरों के माध्यम से वो आइडेंटिटी दिखाना, ये वाकई एक अद्भुत काम किया है। तो इसका मैं थोड़ा सा गा के आपके समक्ष कहना चाहूँ इस बारे में। जी थोड़ा सा मुझे टाइम जी। Power on. Bluetooth mode. Device paired. आवाज आ रही है तानपुरे की? जी बिल्कुल आ रही है। ज्यादा तो नहीं है? नहीं ठीक है। अब पूरिया, मारवा, सोहनी, ये तीनों ही राग सा रे गा मा गा नी सा इन स्वरों में गाए जाते हैं। लेकिन जब हम इनमें एक सप्तक भेद के जरिए से, जैसे कुटीरिया के लिए कहा जाता है कि मंद्र सप्तक प्रधान राग है, ऐसा नहीं कि और सप्तकों में नहीं जाया जाता, लेकिन विशेष जो बल रहता है मंद्र सप्तक की तरफ रहता है। और मारवा के लिए कहा जाता है कि मध्य सप्तक प्रधान राग है, सोहनी के लिए कहा जाता है कि तार सप्तक प्रधान राग है। सप्तक भेद होने से भी इसमें फर्क नजर आता है हमें। और एक और स्वर विशेष है जिसका लगाव वादी संवादी जो शास्त्र की भाषा है वो मैं नहीं करूंगी यहाँ पर,
लेकिन स्वर लगाव भी हमारे पास इसमें एक भेद उत्पन्न करता है। ऋषभ का लगाव, धैवत का लगाव, गंधार का लगाव, निषाद का लगाव। तो ऋषभ का जो लगाव है तीनों ही रागों में बिल्कुल अलग अलग तरीके से विद्वानों ने, संगीत के मनुष्यों ने इसमें बताया है। जैसे पूरिया, तो पूरिया में किस तरीके से व्यवहार रहता है। वाह, तो ये इतने ही स्वरों में राग बहुत अच्छे से निखरता है, स्पष्ट भी होता है। और हालांकि और नीलम जी, नीलम जी थोड़ा माइक के पास आ जाइए, माइक के पास आ जाइए। हाँ, थोड़ा सा। हाँ, जी जी। तो ये तो पूरिया की बात है कि किस तरीके से उसमें व्यवहार रहता है। अगर ऊपर भी जाते हैं पूरिया में, मध्य सप्तक में, तो भी उसका व्यवहार इस प्रकार से पाया जाता है। तो इस प्रकार से ऋषभ तो बिल्कुल अल्प मात्रा में ही इसमें व्यवहार में रहता है। और थोड़ा सा निषाद, तानपुरा कम कर लीजिए, थोड़ा सा तानपुरा कम कर लीजिए। जी जी। तो ये चीजें इसमें ध्यान रखने योग्य रहती हैं कि किस तरीके से गंधार निषाद का प्रयोग किया जाए, किस तरीके से ऋषभ का प्रयोग किया जाए। फिर जब हम मारवा की बात करते हैं तो उसमें जस्ट इसके उलट स्वरों को प्राधान्य दिया जाता है। जैसे पूरिया में हमने गंधार निषाद पर ध्यान दिया, तो मारवा में ऋषभ और धैवत पर और मध्य सप्तक पर विशेष बल रहता है। तो स्वर बदलते ही, स्वर लगाव बदलते ही राग का कैसा एक विचित्र संसार उत्पन्न होता है, जिसको मारवा के नाम से हम लोग सभी जानते हैं। थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ आपके समक्ष कि मारवा में किस तरीके से इन्हीं स्वरों का हम प्रयोग करेंगे। वाह, तो इस तरीके से ऋषभ और धैवत को बढ़ा देना, एक नया एक वातावरण पैदा हुआ, जिसे हम मारवा के स्वरों के, मारवा के राग रूप के माध्यम से हम समझते हैं, गाते बजाते हैं। और अगर इसी में हम और
तार सप्तक की तरफ चलेंगे तो एक नया राग हमारे समझ इन्हीं में उत्पन्न होता है, सोहनी के नाम से, जिसको हम सभी जानते हैं। तो उसकी छलांग, ऐसा भी हमारे गुरुजन सिखाते थे जब हम लोग छोटे थे, कि अगर हम कहें कि पूरिया एक स्त्री, वृद्ध स्त्री, ठीक है, मारवा एक बिल्कुल प्रौढ़ और गंभीर पुरुष, और जो सोहनी है एक चंचल बच्चा, जिसमें टिकाव ही नहीं, थोड़ी देर टिका फिर चल पड़ा, थोड़ी देर टिका फिर चल पड़ा। तो रागों में इस तरीके से व्यक्तित्व को उतारने का प्रयास स्वरों के माध्यम से जो रहता था, और समझाने का भी हमारे साथ में जो माध्यम रहता था, वो वाकई हमें आगे अभ्यास करने के लिए बड़ा लाभप्रद होता रहा। तो सोहनी में किस तरीके से इन्हीं स्वरों का हम व्यवहार करते हैं, कैसे गुरुजन करते हैं। तो ये जो चाल है उत्तरांग की तरफ, तार सप्तक की तरफ, ये बार बार रहती है और सा चमकता रहता है। गंधार है, धैवत है, इन पर न्यास होता है हमारा। स्वर वही समान है तीनों रागों में, लेकिन जो स्वर लगाव है, जो ठहराव है, और जो हमारे संगीत के गुरुजनों ने जो जगह बनाई है इसमें, तो उनसे इन तीनों रागों में एक भेद स्पष्ट भी होता है। और कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि हाँ, ये एक ही फैमिली के हैं। तो इस दृष्टि से हम संक्षेप में ही मैं चलूंगी, क्योंकि टाइम मुझे लगता है कि ज्यादा ना हो जाए। तो ये रागों का हम व्यवहार पाते हैं। इसके बाद राग मैं लेना चाहूंगी, भैरवी थाट के राग हैं, विलासखानी तोड़ी है, और भैरवी खुद कैसे आपस में मिलजुल कर चलते हैं। फिर एक राग उसके साथ और हम बच्चों को जब सिखाते हैं या सीखते थे कि कोमल ऋषभ आसावरी भी साथ में जुड़ा रहता है। तो इनसे बचना और इनके साथ देखना कैसे रागों का है, तो वो भी एक बड़ा अद्भुत चीज है। जैसे विलासखानी तोड़ी है, भैरवी है। अब भैरवी के सुर है सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, स्वर है। राग के रूप में जब आएगा तो उसमें जैसे सभी रागों में हम लोग वर्जित करके जाते हैं, गा मा धा नी सा, सा धा पा गा रे सा, इस तरीके से उनका व्यवहार करेंगे। तो विलासखानी तोड़ी और भैरवी, पहले मैं विलासखानी का थोड़ा सा विस्तार करना चाहूंगी। रे नी सा रे गा, रे गा मा, मा गा, रे गा, रे सा, रे गा मा, मा गा रे गा पा, गा पा धा नी धा मा, नी धा मा गा, रे गा, रे सा। तो इस तरीके से गुरुजनों ने विलासखानी तोड़ी की जो एक शक्ल बनाई, स्वरूप बनाया। स्वर भैरवी के हैं, लेकिन तोड़ी अंग इसमें प्रबल किया, और कहीं आरोह में मध्यम वर्जित कर दिया, अवरोह में। तो इस तरीके से राग की रचना बनी। अब भैरवी होगा तो सा गा मा पा धा पा, धा मा पा धा पा मा गा, सा रे सा। और भैरवी के तो अनेकों रूप हैं, एक में कह पाना भी समर्थ नहीं हो पाता, सक्षम नहीं होता हम। तो अच्छा, एक चीज और यहाँ पर है, विद्वान लोग हमारे जो गुरुजन रहे कहते हैं कम से कम सुर में कैसे भैरवी और विलासखानी समझाई जा सकती है।
कम से कम सुर मतलब सारे गा। इन 3 सुरों में भी भैरवी और विलासगानी या तोड़ी, तोड़ी कह सकते हैं हम। कैसे समझ सकते हैं? तो तोड़ी का तो हम सीधा सा जो रेगा रेसा संगति समझते हैं, फिर भैरवी कैसे अलग करेंगे? तो उसके लिए भी उन्होंने हमेशा छोटे छोटे नुक्ते जैसे बताए। जैसे तोड़ी है सा रे गा रे गा रे सा, तो यहाँ से हमें तोड़ी के दर्शन होते हैं। अब कौन सी तोड़ी होगी वो आगे हम जब बढ़ते हैं तो हमें क्लियर होता जाता है। अब इन्हीं सारे गाँव में भैरवी, उसके लिए भैरवी की जो विशेष चीजें हैं अलंकरण की हैं, उनका प्रयोग करके फिर उसमें भैरवी के दर्शन किस तरह से होते हैं देखिए। सा गा सा रे सा, और किसी चीज की जरूरत नहीं है हमें। गा सा रे सा, इतना कहने से भैरवी हमारे सामने स्पष्ट रूप से खड़ी हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें एक दूसरे से अलग भी करती हैं, और अगर नहीं ध्यान देंगे तो वो जुड़ जाएंगे आपस में। तो हमारे जो राग संगीत की विशेषता है कि एकता होते हुए भी अनेकता, और उसमें सौंदर्य, ये चीजें हमेशा ध्यान में रख के हम लोग सीखते भी रहे और कोशिश करते हैं कि विद्यार्थियों में वो चीज आगे बांट सकें। इसी प्रकार से 2 राग और हैं हमारे, जैसे मेघ मधुमाग सारंग, दोनों में सारे मापा नीसा निषाद कोमल, सारे मापा नीसा सानी पमारे सानी पमारे, सारे मापा मारे सा। पता नहीं क्यों बैरागी दिमाग में आ गया एकदम हो जाता है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज है कि इसमें इन स्वरों का हम प्रयोग करते हैं। तो अब इन्हीं में मध्यमा सारंग बनाना है, इन्हीं में मेघ बनाना है। तो क्या चीजें हम ध्यान में रखें, क्या चीजें छोड़ें? उसमें सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि मेघ जो है वो मल्हार अंग का राग है, मल्हार का भेद है, और मधुमाग है वो सारंग अंग का राग। तो इन दोनों में हमें इन चीजों को ध्यान में रखना होगा कि मेघ में मल्हार को दिखाया जाए और मधुमाग में सारंग को। रे मा पा मा रे सा, रे मा पा नी पा मा रे सा, रे मा पा नी सा नी पा मा रे, ये सीधे सीधे स्वर है। तो सारंग में क्या चीज ध्यान रखने योग्य है कि एक तो ऋषभ, ऋषभ पर उसके राग की पूरी लुढ़क रहती है, जो मैंने अभी गड़बड़ किया था। तो पूरे राग में ऋषभ की लुढ़क रहती है और चांचल्य रहता है। अगर वृंदावनी सारंग आप ध्यान दें कि 2 निषाद के साथ ऋषभ, तो वो चंचलता भी हमें कहीं ना कहीं दिखती है, क्योंकि बहुत गहराई के साथ इसमें स्वरों का व्यवहार नहीं किया जाता। अगर हम बहुत गहराई के साथ चलेंगे तो साथ साथ में जो और राग लगे हुए हैं वो उसके साथ आने लगेंगे। रे रे सा नी सा, रे मा पा मा रे सा, सा रे मा रे मा पा नी पा मा रे पा मा रे पा मा रे नी सा। इस तरीके से रेपा मा संगति का भी हम व्यवहार करेंगे सारंग में। रे मा पा नी पा नी सा, सा नी पा मा रे नी सा रे पा मा रे
मारे ने सा। तो इस प्रकार से गाने से स्वतः ही मध्यमा सारंग के हम स्वरूप के साथ जुड़ेंगे। और जब इन्हीं स्वरों में हम मल्हार का ध्यान करके गाएंगे, मसलन मध्यम का और नीर का, गमक का, आंदोलन का ध्यान करेंगे, जैसा कि मल्हार में गाया जाता है, क्योंकि वो वर्षा ऋतु का राग है, धीर गंभीर राग है, और मेघ भी बहुत गंभीर रागों में से माना जाता है। तो उसके लिए स्वरों का गांभीर्य उत्पन्न करना होगा। तो उसमें नी है, रे है, मध्यम के साथ कैसे जुड़ेगा, तो वो ध्यान में रख के हम गाएंगे, तो स्वतः ही इन स्वरों में हमारे समक्ष मेघ उत्पन्न होगा। मैं प्रयास करती हूँ। मा पा सा ने ने रे रे मा मा रे रे नी पा रे रे सा। क्या बात है, वाह। नी सा रे मा मा रे रे पा रे मा रे रे पा रे मा रे सा। वाह, रे मा पा नी मा रे क्या बात है, वाह। रे रे नी रे नी पा रे रे नी पा नी मा पा वाह वाह, क्या बात, क्या निशान लगे, वाह वाह वाह, क्या बात। वाह, प्रकार से बहुत पेशेंस के साथ इन स्वरों को लगाएं, पूरी दम सांस के साथ, तो राग स्पष्ट हो सकता है। और अभी मुझे समय बताइए कितना मेरे लिए और बाकी है। आप अभी कंटिन्यू कर सकते हैं नीलम जी, प्लीज। हाँ, अभी आप। तो राग तो हमारे बहुत सारे हैं इस तरीके के उसमें। तो एक सूक्ष्म भेद और भी हमारे संगीत में हम लोग पाते हैं, जैसे स्वर संगतियां, छोटी छोटी स्वर संगतियां, रेपा की संगति है, पारे की संगति है, और निधा निसा की संगति है। सिर्फ कोमल रे में भी कई सारे राग हम पाते हैं। तो ये संगतियां किस तरीके से रागों में भेद उत्पन्न करती हैं। अगर हम रेपा संगति की बात करें, कई रागों में रेपा हमें दिखाई देता है। कामोद में है, मल्हार में है ना। तो मल्हार में किस तरीके से रेपा है, कामोद में किस तरीके से उसका व्यवहार रहेगा, ये बड़ा ही एक सूक्ष्म भेद है इनमें। तो मल्हार में वही, जैसे मैंने अभी मेघ मल्हार की बात की थी, नीर के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे तो वो मल्हार का रेपा बन जाएगा। जैसे सा रे 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 पा रे पा। अब इसको किसी भी मल्हार के प्रकार में जिन जिनमें इसका व्यवहार रहता है
हम लगा सकते हैं, नियमनाद में लगाएं। ठीक है, तो ये रेपा की संगति कहते ही हमें मल्हार का बोध होता है। रे 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 पा नी मा पा। ये भी जोड़ेंगे तो और हम थोड़ा नजदीक पहुंचने लगते हैं। मियां मल्हार के पास जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो जो रेपा संगति है, अब कामोद में यही रेपा संगति का जब हम प्रयोग करेंगे तो इतना दीर्घ हिसाब किताब से नहीं करेंगे। कामोद की चंचल प्रकृति का राग माना जाता है, तो इसमें रेपा का रेपा सीधा प्रयोग, रेपा गामा पा गामा रे सा रे पा गा पा गामा गा इस तरीके से उसमें चाल रखेंगे हम रेपा। और जब हम उसको उलट दें पारे, तो पारे में भी बहुत सारे राग हमारे समक्ष उपस्थित हो जाते हैं और उनमें भेद रखना पड़ता है ताकि वो स्पष्ट रहे। पारे का सबसे बड़ा, और आजकल हम लोग विद्यार्थियों को सिखा भी रहे हैं, छायानट। छायानट में बहुत प्रोमिनेंट पारे संगति प्रयोग होती है, जयदेववंती में प्रयोग होती है, गौड़ सारंग में प्रयोग होती है, बहुत सारे रागों में है। तो इस तरीके से उनमें हम पारे संगति पाते हैं। थोड़ा तानपुरा कम कर लीजिए नीलम जी, थोड़ा सा। जी हाँ, ये मैं भूल जाती हूँ बार बार ना। हाँ, कोई बात नहीं, आप कम ही रख लीजिए, चाहे काफी आ रहा है जी। मेरी आवाज नहीं खुल पाती है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं ध्यान रखती हूँ। तो पारे संगति अलग अलग रागों में कैसे उसकी बोधक बन जाती है कि वो कहते ही वो राग स्पष्ट हो। पारे पारे रे गा गा मा मा पा मा गा मा रे मा रे सा। बाद में अगर पारे के बाद वो संगतियां ना भी बोले तो भी हमारे सामने एकदम स्पष्ट होगा कि छायानट का ही पारे का। पारे रे गा मा नी धा पा रे गा मा पा मा गा मा रे सा रे सा। अब यही पारे गौड़ सारंग है, यमन है, देखिए कितना प्रचलित है। तो गौड़ सारंग में इस पारे को बिना किसी तकल्लुफ के प्रयोग किया जाए तो गौड़ सारंग का पारे आ जाएगा। पारे सारे सा गा रे मा गा रे ना, बिल्कुल सीधा पारे। फिर यही पारे को तीव्र मध्यम का सहारा देते हुए जब हम उतारेंगे तो वो यमन कल्याण की तरफ चला जाएगा। पारे वाह, और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है हमें। पारे सा। अब आगे अगर करेंगे तो वो मन को लगेगा कि हाँ और भी गाया जाए। तो ये जो पारे की संगतियां हैं जयदेववंती में भी है। अब इनमें अवरोही क्रम में है, जयदेववंती में आरोही क्रम में पारे। सा रे सा रे गा रे, सॉरी, सा रे नी गा पा रे रे गा मा पा मा गा
मा गा रे गा रे सा रे पा रे। तो ये जो बहुत प अच्छा। रे है, कैसे कैसे लगाया जाए, कैसे इसका ध्यान किया जाए, तो इस पर भी हमें बहुत ध्यान से अभ्यास करना चाहिए और उसको अभ्यास करके अंदर बैठाना चाहिए, तो ही स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। ऐसे ही रे मा पा तीव्र मध्यम के साथ बहुत सारे रागों में यूज होता है रे मा पा, और श्याम कल्याण है और शुद्ध सारण, इन दोनों रागों में भी प्रयोग किया जाता है, कुछ भी नहीं छूटा। सा रे मा पा ये प्रयोग होता है। अब कौन सा श्याम कल्याण का रे मा पा है, कौन सा शुद्ध सारण का रे मा पा है, इतना कहे स्पष्ट हो जाए, ये भी बड़ी ध्यान देने योग्य चीज है। तो जैसा हमारे गुरुजन हमें बताया करते रहे हैं कि श्याम कल्याण कल्याण का राग है और शुद्ध सारण सारण का राग है, तो हमें उस पर ध्यान देना होगा कि कल्याण में कौन सा स्वर प्रोमिनेंट रहता है, सारण में कौन सा स्वर प्रोमिनेंट रहता है। तो उसको प्रोमिनेंट बनाते हुए जब हम गाएंगे तो रेमा पा में ही हम दोनों रागों को क्लियर कट तरीके से हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे सा रे मा 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 पा रे मा मा पा, तो कल्याण की झलक आने लगती है। बाकी हम और उसके जो अवयव हैं लगाएंगे तो क्लियर ही होगा। और अगर किसी में ऋषभ को प्रबल बनाएंगे, जैसे सा रे 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 मा पा, क्या बात है, वाह। तो यहाँ शुद्ध सारण के लिए हम एक भाव मूर्ति खड़ी कर सकेंगे। रे 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 मा पा मा रे सा, और उसमें श्याम कल्याण में सा रे मा मा हाँ। गा पा गा मा रे सा। तो इस प्रकार से छोटी छोटी हम जो स्वर संगतियां हैं उन पर ध्यान दें, क्योंकि राग अपने में एक बहुत विस्तृत चीज भी है, और अगर समझ के हम उसको करें तो बहुत डराने वाली चीज भी नहीं है, बहुत प्रिय चीज है। तो हम जब तक नहीं समझ पाते हैं हम उससे बहुत डरते हैं। अरे ये विलासखानी कैसे गाएं, तुमल आशावरी कैसे गाएं, समझ ही नहीं आता, ये मिल जाते हैं बीच बीच में, क्योंकि हम वहां अपनी तरफ से उस पिन पॉइंट पर नहीं पहुंच पाते जहां पर हमारा ध्यान होना चाहिए। क्योंकि हाँ, कई गुरुजन हमारे ऐसे हैं कि वो गा तो देते हैं आपके समझ, और ऐसा अच्छा गाते हैं कि हम उनके गाना सुन के उसी में डूब जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम इसमें से बारीकी से क्या पकड़े। काफी टाइम तक तो यही नहीं समझ में आता, लेकिन अगर उस चीज को हम स्पष्ट करते हुए जब गाते हैं तो विद्यार्थी उसको जरूर समझता है, और अगर 10 विद्यार्थी हैं तो अवश्य ही उसमें से 1 या 2 विद्यार्थी उसको समझेंगे और उसको आगे बढ़ाते हुए अपने संगीत को भी आगे लेकर चलेंगे। तो आज हमारा जो ध्यान ये होना चाहिए कि हम जो भी बात करते हैं क्रियात्मक रूप में, जो भी हम बताते हैं, अच्छा गाना बहुत अच्छी बात है, उसको हम स्पष्ट भी कर दें विद्यार्थियों के आगे कि भाई यहाँ पर ये चीज होनी चाहिए, इस पर ध्यान दो, इस पर, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन गैप हो रही है, जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है, उनका ध्यान उन बारीकियों पर नहीं हो पाता। वो उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ शैक्षिक मजबूरियां हैं, कुछ आर्थिक मजबूरियां हैं, कुछ पारिवारिक मजबूरियां हैं,
क्योंकि वो वातावरण नहीं मिलता, उनको बहुत जल्दी होती है कि हम कलाकार बन जाएं, उनको, ठीक है ना। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं। तो अगर हम विद्यार्थियों के साथ इन चीजों को, बारीक चीजों को भी शेयर करें। अब आप राग सिखाते हैं कक्षाओं में, रे रे रे, आप बोलते हैं ऐसे विद्यार्थी कई बार रे रे खड़े सुर लगाते हैं, नहीं ध्यान जाता उनका, क्योंकि वैसी सोच, वैसी अप्रोच नहीं बन पाती। तो राग संगीत तो इतना विस्तृत संगीत है कि इसमें अगर इस तरीके की हम अप्रोच नहीं बनाएंगे तो कुछ भी हम करेंगे वो उतना सुनने में मन को लगेगा नहीं, उतना भावमय नहीं होगा, उतना उसका असर नहीं हमारे सामने आएगा। तो हमेशा मेरा भी यही उद्देश्य रहता है कि जब विद्यार्थियों को सिखाया जाए अपनी क्षमता के अनुसार, जो भी मैंने सीख पाया, जितना मैं समझ पाई हूँ, उसको मैं उनको स्पष्ट रूप में उनके सामने रखूं, ताकि जब वो अभ्यास करें, आज नहीं कर सकते कल करेंगे, कल नहीं परसों, जब उनको चेतना जागृत होगी तो उस पर वो अगर अमल करते हैं तो उनका तो भला होगा ही होगा, साथ में हमारे संगीत का भी भला होगा। नहीं तो, हाँ, नहीं तो ये कागजों में जिस तरीके से रह जाएगा बंद के, या ध्यान ही नहीं होने से संगीत की वो जो डेप्थ है वो नहीं आ पाएगी। तो उसके लिए हमें ये छोटे छोटे जो नुक्ते हैं, छोटे छोटे स्वर संगतियों के रूप में कह लें। अब नीधा निशा है, मल्हार गाते हैं विद्यार्थी खूब आराम से, लेकिन वो चीज नहीं आ पाती जो मल्हार के नीधा निशा में चाहिए, या बाहर जाते समय बाहर के नीधा निशा में चाहिए। तो इस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई मल्हार का नीधा निशा कहते ही मल्हार दिखाओ भाई, गामा रेसा है, कानड़ा का गामा रेसा, मल्हार का गामा रेसा स्पष्ट होना चाहिए। केवल नी पा से, नी पा, कोमल नी और पंचम से मल्हार, सारंग और कानड़ा तीनों स्पष्ट होने चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि मेरे जो गुरुजन रहे, जितने भी हमारे, मैं आगरा से रहने वाली हूँ, आगरा की, और वहाँ के शैक्षिक संस्थान दयालबाग शिक्षण संस्थान में मेरी 6th क्लास से MA तक की शिक्षा हुई। तो हमें 6th क्लास से म्यूजिक सीखने का अवसर मिला, 9th में एज ए सब्जेक्ट हमने चयन किया इसका। तो 12th तक जो शिक्षा मिली, उसके बाद कॉलेज में, उसके बाद यूनिवर्सिटी में, जितना हमने सीखा उस समय हम नहीं समझ पाते थे, लेकिन जो उन्होंने सिखाया आज भी हमारे लिए वो एक गाइड का काम करता है। बहुत अच्छे से तालीम मिली। और साथ ही साथ हमारे जो आगरा घराने के उस्ताद अकील अहमद खान साहब थे, और जगह जगह, जैसे मैंने फिर बाद में बनारस में डॉक्टरेट किया, DNIS किया, PhD की, उस दौरान वहाँ जो गुरुजन मुझे मिले, तो वहाँ जाके भी मेरा बड़ा एक जो रागों को देखने का जो नजरिया है, एक समय में कभी भी कोई चीज नहीं होती, लेकिन नजरिया बदलने में टाइम लगता है। और उसमें अगर गुरुजनों का मार्गदर्शन हो, हमारा सतत अभ्यास हो, तो जरूर ये चीजें हमें साधने में आसान हो जाता है, हम इन चीजों को साधने में सफल भी हो पाते हैं। तो बनारस प्रवास के दौरान आगरा में जो शिक्षा मिली, और उसके बाद जब मैंने विद्यार्थियों को सिखाने का प्रयास किया, सिखाना शुरू किया, तो सिखाते सिखाते भी मुझे बहुत सारी चीजों का मतलब क्लैरिफिकेशन हुआ। क्योंकि हम सीखते वक्त उतना शायद नहीं ध्यान देते, लेकिन सिखाने में हम पहले ध्यान से खुद देखते हैं कि हमने क्या देना है, कैसे देना है, तो वो चीजें बहुत एक मार्गदर्शन का काम करती हैं। तो यही मेरा एक निवेदन रहता है हमेशा सभी से, कि हम लोग रागों के बारे में अपना दृष्टिकोण बहुत डरावना ना लें। कई बार विद्यार्थी लोग बहुत डर जाते हैं रागों से, अरे बाप रे, राग संगीत ये तो हमसे नहीं होगा, हम फोक गा लेंगे, हम गजल गा लेंगे, जबकि वो गाने तो मुश्किल है। लेकिन ये है कि साधने की बातें, उनका मन और उनकी अप्रोच उसके साथ जुड़ गई तो उनको वो इजी लगता है। ठीक है, जिनको शास्त्रीय संगीत के साथ सहयोग हो जाता है तो उनको शास्त्रीय संगीत इजी हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के साथ जो रागों में छुपी हुई हैं, गुथी हुई हैं। अब बंदिशें हैं रागों की, बंदिशें भी हमारी गुरु हैं, गाइड करती हैं हमें कि मुझे इस जगह पर ऐसे चलाओ, इस जगह पर ऐसे चलाओ, इस जगह पर ऐसे चलाओ। लेकिन हम बंदिशों को देखें तो पहले उस दृष्टि से, पहले हूबहू सीखें,
जो हमें गुरुजन सिखाते हैं, हम पहले हूबहू बंदिश को सीखें। सीखने के बाद क्या उसका इतना अभ्यास करें कि जब भी हम गाएं बंदिश तो हमारी सही बंदिश है। वाह। फिर उसमें हम उसकी डिसेक्शन करके देखें कि भाई ये बंदिश क्या कह रही है। सापा के बीच में कैसे चलना है, हमें पा से सा के बीच में कैसे चलना है। और बड़ी मजेदार बात है कि कई बार विद्यार्थी कहते हैं मैम बंदिश आ गई, अब हम राग कैसे बनाएं, आलाप कैसे करें, ताने नहीं सूझ रहे। तो उसमें भी हमें जो रास्ता बताया गया शुरू से लेकर यहाँ अपने आदरणीय यशपाल सर जी ने भी जो हमें शिक्षा दी, उसमें यही हमेशा बताया गया कि बंदिश को देखो, बंदिश को आकार में खूब अभ्यास करो बंदिश का। तो जो बंदिश के रागों के जो स्वर के तोड़ मोड़ होते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी आपके गले में बैठेगी। फिर आप उसको धीमी लय में करो, ताल चलने दो आप, जो लय में आपकी बंदिश है उसमें बंदिश का रख रखाव है उसको बिल्कुल स्लो मोशन में चेक करो, उसी को गाओ, कुछ मत गाओ, तो आपके पास आलाप की जगह निकलने लगती है। बहुत अच्छे। ठीक है। और जब उसी बंदिश को हम नियत जो लय हमारी चल रही है उससे बढ़ाकर गाएंगे, आकार में गाएंगे, शब्द नहीं गाने, जब आकार में हम उसको अभ्यास करेंगे बार बार, तो फिर उसमें से तान की जगह निकल कर आती है। तो जब हमें ऐसी चीज पता चली तो हमने कहा हमको एक बंदिश ही चाहिए हमें, बल्कि एक राग में खूब सारी बंदिशें सिखाई। और खान साहब से तो मैंने, अकील अहमद खान साहब से तो क्योंकि मैंने बचपन से ही सीखा बीए से, तो बड़ा एक चॉइस के साथ मैं उनके साथ सीखा करती थी। नहीं खान साहब ये बंदिश नहीं चाहिए मुझे, ये वाली चाहिए, ये बंदिश मुझे अच्छी लग रही है। तो एक एक राग में कई कई बंदिशें सिखाया करते थे। कहते हैं बेटा देखो इस बंदिश में क्या कहा जा रहा है, इस बंदिश में क्या जगह बनी है, इस बंदिश में क्या जगह बनी है। तो उन सभी पर अभ्यास करके फिर उसमें से आलाप की जगह इतनी सुंदर निकल कर आती है, तानों की जगह निकलती है उसमें से। तो वो चीज समझ में आते 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 टाइम लगता है। और जब समझ आती है तो फिर ये लगता है कि सारे राग बंदिश सीख लो, राग तो हमारा हो गया। वाह, मुश्किल ही कोई नहीं है। तो ये चीजें हैं। तो ये कक्षाओं में हम विद्यार्थियों के सामने हमेशा कोशिश करते हैं कि चीजें उनके साथ शेयर करें बारीकी से। अब जो भी व्यवस्था है उसमें करना तो है, अपना कर्म तो हमें करना है, जो भी हमारे साथ जो व्यवस्था है उसमें। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि विद्यार्थी समझते हैं। हाँ, और आगे अगर 10-20 विद्यार्थी में से 2 विद्यार्थी भी ये काम करता है तो मैं सोचती हूँ कि मेरी शिक्षा, मेरी विद्या सफल है, क्योंकि हर विद्यार्थी उसमें जुड़ पाएगा बहुत मुश्किल है। तो ये चीजें मैं समझती हूँ, मैंने बहुत ज्यादा बात कर ली। आप सब बड़े ध्यान से सुनते हैं तो इसलिए मेरा उत्साह बढ़ा। तो मैं यही अब अपनी बात को विराम देना चाहती हूँ। वाह, धन्यवाद। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी, बहुत खूब। लेकिन जो आपने कहा है कि आपने ज्यादा बात कर ली, मुझे लगता है कि ये बातें करना और इनको बार बार याद करना, इन बातों को जहन में रखना एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ टीचर। मेरी आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल। हाँ, ये बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए चीज। और आपने बहुत खूबसूरत ढंग से, क्रियात्मक रूप से रागों की इन सूक्ष्म जो ये राज हैं हमारे रागों के, मैं कहूंगी कि जेडे ये भेद, ये जुगतां, ਜਿਹਨੂੰ जुगत कहते हैं ना, जुगत भी कोई आप पंजाबी च कहने ना कोई जुगत लड़ा, ये वो जुगता ने, वो राज ने। कुछ नए भेद, नए राज दिया करते हैं। क्या बात कहते हैं कि सुनने वालों को मोहलत मिले तो बात अलग, वरना सन्नाटे भी आवाज दिया करते हैं। क्या बात है। तो वो सन्नाटों की आवाज जब हम सुनने लायक हो जाएंगे, हमारी, मैं जब डॉक्टर पैंतल से सीख रही थी ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੈਂਤਲ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸੂਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਨ ਬਣਾ ਲਵੇ। क्या बात। पूरा शरीर कान बना ले वो अपना।
पहले वो सुने। हम्म, मुझे लगता है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, इसमें हम जी। बोलने में, कहने में बड़ी रुचि लेते हैं, लेकिन वाह सुनने, हमारा संगीत तो श्रुति विद्या है, और श्रुति है, श्रुति मतलब जो सुनी जा सके। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये बातें आज हम कर रहे हैं, और ये सब हमें बार बार, जैसे मैंने कहा, दोहराना पड़ेगा जीवन में। हमें भी जी, बार बिल्कुल। बार इसकी गांठ बांधनी पड़ेगी। अगर हम गांठ बांधे रखेंगे तो जो विद्यार्थी हमारे संपर्क में आते हैं, हम जी। उन तक ये जो बंधी हुई गांठ है उनको दिखा सकेंगे कि देखो मैंने आज भी। ਉਹ ਨਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਦੀ ਗੰਢ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਪਤਾ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹ, ਭਈ ਵਾਹ। ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੰਢ ਬੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਗੰਢ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ कि मैं आ काम करना है ऐदा। तो वो कुछ वो वाकई जो मुहावरा है ना कि बात गांठ बांध लो, जी वो जी जी मुहावरा यहीं से कहीं बना लगता है मुझे। क्या बात है। तो ये गांठें बांधनी इसलिए होती है कि ये गांठें खोलते भी रहे हम। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और आपने जैसे राग और उसके व्यक्तित्व को स्पष्ट किया, मैं तो ये कहती हूँ कि राग तो राग है। अब तो हम किसी अपने के व्यक्तित्व को जानने का पूरा भी हमारे पास समय, अवसर और उस तरह की क्या कहें कि भावना ही नहीं कि किसी अपने को भी जान लें। वैसे इसीलिए जो हमारी फैमिलीज हैं उनमें भी वो टेंशन्स इसीलिए बढ़ती हैं कि हम एक दूसरे को समझते ही नहीं। तो अगर वो समझ हम अगर गवा रहे हैं तो राग को समझना तो उससे भी एक मुश्किल काम है, उससे भी बारीक काम है। बट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यू हैव रेज्ड नीलम जी, एंड वी आर सो थैंकफुल टू यू। हम सबको आपने बहुत मैं कहूंगी कि एक चार्ज कर दिया कि हम इन चीजों पे और ध्यान दें। ਮੈਡਮ ਨਵੇਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਪੰਡਿਤ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮੈਡਮ ਦੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਪੰਡਿਤ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਜੀ। क्या बात। इस दौरान रमन कोई जी, सवाल आवाज हो जी। तो तुसी नोट कर लेना। हाँ ओके जी जी बिल्कुल हाँ ठीक जी है हाँ जी जी। हाँ जी। अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह। सब तो पहला इट्स माय ग्रेटिट्यूड टू बी अमंगस्ट यू वंस मोर। So I thank Sarvakal team for organizing or for this get together. Rather, I would say Women's Scholars Panorama. This is the panorama of the doctors of our region. वाह वाह। panorama ऐसा है। तो my full endorsement to this discerning call that has been tuned by Professor Dr. Nivedita Singh. Thanks to all concerned. इस तो मैं सुन रहा सीगा और मैं इस गल तो मैंने इन्नी नॉलेज नहीं सीगी, मैं गवैया नहीं हैगा, तो लेकिन फिर भी आई एम फॉर्चुनेट टू बी अमंगस्ट यू। लेकिन ये है कि मेरी टीन एज तक मैं गाना सीखता रहा और उस जमाने भी ठहर के बाद च गल करदा है। पता नहीं टाइम कितना का 10-15 मिनट है, मैनू किन्ने का है? हाँ जी कोई नहीं। अच्छा जी जी जी। तो जैन साहब तुसी टाइम तक बहुत तुसी जिन्ना मर्जी कह सकते हो, पर आप कोशिश कर लिए भाई हाँ 5-7 मिनट। हाँ थैंक यू। First my thanks should be completed to all these professor doctors for accepting this intuitive ਜਿਹੜੀ call है ਜਿਹੜਾ thought by ਨਿਵੇਤਾ ਜੀ। तो ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। वाह वाह। I was not aware of the qualification of Neelam Paul ji ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, but I am surprised. He is a multifaceted personality। ਐਵੇਂ ਇਤਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਜ਼ ਯਾਬ ਹੋਏ ਹੈ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਮੇਰੇ ਤਾਂ 2 ਪੇਜ ਭਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਹ। ਨਿਵੇਦਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਾਦਾਤਮਕਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਏ ਕੁਝ ਸੁਰ 12 ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਫੇਰ ਸਹੀ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਫੇਰ ਸਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਸਾ ਦਾ, ਰੇ ਦਾ, ਗਾ ਦਾ, ਮਾ ਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਰ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो पहला नाद आऊगा ता ही सुर बनूगा ना। तो नाद मैं शायद अपने पिछले थोड़े बहुते जो बयान हुए कहा, उस वक्त भी मैं कहा सीगा कि ये आहत नाद तो ही सारा संगीत है, आहत नाद है। ता वो आत्मा बुद्ध्या स्मृत्यार्थान मनोयुक्ते विवक्षया मन कायाग्नि माहंती से प्रेरयति मारुतम मारुत स्तुरी चरण मंद्र जनयति स्वरम। तो ਉਹ ਉਥੋਂ ਸਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਵਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਆ ਈ ਵਾਵਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਬੀਮ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਬਖਸ਼ ਸਥਲ ਤੋਂ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਧਰ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਨੀਚੇ ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੱਕਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਨਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸਦੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਸਟੇਜ ਟੂ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਚ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਆਂ 22 ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਜਾਂ 12 ਸਵਰ ਜਾਂ 7 ਮੇਨ ਸਵਰ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਪਾਟੀਆਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹੀ ਕਿ ਰੰਜਯਤੀ ਇਤੀ ਰਾਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਰਾਗ ਬਣੇ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ, ਰਾਜੇ ਹੋਣ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਲਾ ਦੀ ਜਾਂ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰय ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਸ਼ਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀयता, ਨਿਯਮ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਨਿਯਮ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੀਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, 40 ਮੀਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਚਲਾਈਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀयता ਹੈ, ਕਲਾਸਿਸਿਟੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਲਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿਣ ਵਿਦਿਨ ਦੇਅਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡੀਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਨੇ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਬੰਨਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਥਾਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਗਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਲਾਸਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੇਲੀਐਂਟ ਫੀਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਾਸਿਸਿਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆ ਗਏ, ਨਿਯਮ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮਪਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਕੂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਕੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਕੂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਦਰਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰ ਲਗਾਣੇ ਹੈ, ਘੱਟ ਨਰਮ ਲਗਾਣੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਪ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚਤਾ ਹੈ, ਦੀਪਤਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਕੂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਸ਼ ਵੇਤੇਸ਼ੂ ਨਿत्य ਹੀ ਨਾਨਾ ਰਸ ਸਮਾश्रय, भावेश वेतेषु नित्य ही नाना रस समाश्रय, उच्चा दीप्ता द्रुता चैव काकू कार्या प्रोक्तृ भी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਕੂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਤਾਰ ਤੇ ਵੀ, ਤਬਲੇ ਤੇ ਵੀ, ਗਾਇਨ ਤੇ ਵੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੀ, ਧਮਾਰ, ਧਰੁਵਤ ਧਮਾਰ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਭ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਾਕੂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਪਾਲੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿੱਤਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ।
ਧਨਾਸ਼ਰੀ ਭੀਮ ਪਲਾਸੀ ਵੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਪੂਰੀ ਔਰ ਮਾਰਵਾ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਦਾਂ ਮੱਧਮ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗਾਮਾ ਥਾ ਗਾਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੱਧਾ ਰੇ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਹਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਰੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਉਰਧਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗਾਇਨ ਦੀ ਉਰਧਵਤਾ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਧਾਨੀ ਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਧਾਨੀ ਰੇ, ਧਾਰੇ, ਧਾ ਔਰ ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾ ਔਰ ਗਾ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਧਾ ਔਰ ਰੇ, ਸਾ ਔਰ ਗਾ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾ ਧਾ, ਸਾ ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੰਵਾਦ ਇਜ਼ देयर। तो संवाद भी कायम रहते हैं, और कुछ स्वर संगतियां ਜਿਹੜੀਆਂ है इंपॉर्टेंट हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ हेर फेर है इधर उधर करना सारा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਗ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੋਸਟਲੀ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ देयर लॉन्ग स्टडी। शुद्ध कल्याण, भूप कल्याण, भोपाली, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਦੇਸ਼ਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਚ ਧੈਵਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਭੋਪਾਲੀ ਸਾਰੇ ਗਾ ਪਾ ਧਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਰਾਗਵਾਚਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ, ਰਾਗਵਾਚਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋੜੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੋੜੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਮ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇ ਔਰ ਮਰ ਜਾ ਗਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੋੜੀ ਮੀਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਧਾ ਤੇ ਰੇ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਚਮ ਭਾਵ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਲਿੱਤਾ, ਗੌੜ ਸਾਰੰਗ, छाया नट, जय जयवंती, यमन कल्याण, पारे और रे पा दे संवाद, छाया नट भी आ गया। सा और मां दे संवाद, सा और पा दे संवाद, रे और पा आनंदी च भी आंदा है जी, उल्ट के आंदा है। तो इस तरह बिलासखानी तोड़ी भैरवी ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। क्या ਤਿੰਨ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਚਕ ਰਾਗਵਾਚਕ ਸਵਰ ਹੈ, ਸਾਗਾ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਾ ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਟੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਲਿਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਮੱਧਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਕਲਿਆਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਆਫਟਰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ one has to be tuned to the important combinations। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ important combinations ਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਕਿਆ ਹੈ, ਸੈਂਡਿੰਗ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਸ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਪਾਸ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਡੈਪਟਨੈਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਅਡੈਪਟਨੈਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਰਨਡਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਸੌਰਟਡ ਆਊਟ ਵੈਰੀ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਸੌਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਟੋਰ 'ਚ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਰਾ ਉਤਰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 50-60 ਸਾਲ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਸਤਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਮਲੀ ਕੰਸਰਟ ਸੀਗੀਆਂ
ਇਹ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਘਰ, 20 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਲ ਦੀ ਗੁਣੀਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਥਿਅਰਿਸਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਵੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਰੋਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਪੀਣੇ, ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਏਦਾਂ ਲਗਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਲਗਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਸਿਵਾਏ ਹਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮਲੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਦੋ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ of the ladies lecturers and professor doctorates, oh, it's a great thing. ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਮਾਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਮਲੀ ਕੰਸਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ you will be filled with your worries that I am to present my rendition next week, next fortnight, month, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਰ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। बहुत अच्छे जी जी जैन साहब जी। ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦਊਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਹੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਈ ਐਮ ਪਲੀਜ਼ਡ ਟੂ ਹੈਵ ਦਿਸ ਓਕੇਜ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆਈ, ਬੜੀ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੜੀ ਪਿਓਰ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਤ ਘੇਰ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫॉर योर ਸੱਚ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਰਡਸ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਇਹ ਮੌਕੇ ਪਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਏ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੂਬਸੂਰਤ। ਸੋ ਰਮਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੀ? मैम कोई क्वेश्चन नहीं आया जी, मैम ने व्याख्या ही इतनी अच्छी की है। क्या बात है, कोई गुंजाइश नहीं सी, कोई गुंजाइश नहीं सी, क्योंकि मैडम नाल बड़ा एक्सप्लेन करते गए, उसके बारे सारा कुछ दसते गए। और उन्होंने ये भी देखो, सवाल और जवाब ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹੈ। परमात्मा सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਕੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਵਜੇ
ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਖ ਆਪਣਾ ਨ੍ਰਿਤ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਡੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਥਕ ਡਾਂਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਵਾਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਕ ਨ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ, ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਪੈਦਾ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਹਮਵਰਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੰਚ ਨਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਹ ਪਰ ਕੀ ਬਾਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਖਮ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਦਲੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਔਰ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਅਕਾਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਪੱਲਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਓਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸ਼ੁਭ ਰਾਤਰੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਡਮ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਗਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਆਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਆਵਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਿਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਹੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।